गाइस हमने सीरीज शुरू की है एम्बर एंड एम्बर की एंथ्रोपोलॉजी बाय एम्बर एंड एम्बर। तो इस बुक में हमने पहली वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। इस बुक को लिखने वाले 3 ऑथर्स हैं, उनके नाम आपको बता दूं, एम्बर एंड पेरिग्रीन। 3 लोग हैं जो इस बुक को लिख रहे हैं, लिखी है जिन्होंने। तो चैप्टर 1 मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। So let us discuss now chapter 2. Chapter 2 is research methods in anthropology. तो आइए हम देखते हैं रिसर्च मेथड्स होता क्या है एंथ्रोपोलॉजी में। तो एक्सप्लेनेशन तो होता क्या है, वेरिएबल, लॉज, ये हम चीजें पढ़ेंगे। थ्योरीज क्या होती हैं। ओके, सो आप देखिए, द इंटेलेक्चुअल्स हु डेवलप्ड साइंस इन द मिड 17th century and understood very well that human knowledge of the world, ये मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, could be biased and incomplete. Rather than rejecting the possibility of objective understanding, the founders of science created a way of generating understanding based on the rigorous testing of ideas. As anthropologist Philip Salzman explained, the scientific method, the heart of science, was invented because it was understood that human error, wish fulfillment, duplicity, dishonesty, weakness could commonly distort research findings. The scientific requirements that the procedure of all studies must be specified in detail so that others could repeat them, and the actual replication of findings by other scientists in other venues were established to minimize the distorting effects of human subjectivity and more weakness in the quest for knowledge. Although one goal of anthropology is to understand what it means to be human in a different cultural context. Human का मतलब क्या होता है, जब हम कल्चरों को, जब बहुत सारे कल्चर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको बारे में हम लोग स्टडी करते पाते हैं। तो आप देखिए कि अब एरर्स, ह्यूमन कब जब काम करता है तो एरर्स होती है। तो एक टेक्निक बनाई गई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। वो टेक्निक रिसर्चर को बतानी है ताकि और रिसर्चर भी उस रिजल्ट को रेप्लिकेट कर सके किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में या सेम कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो अब एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं। ओके, तो ह्यूमन एरर्स हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसको गलत साबित कर सकती हैं। वो गलत रिसर्च फाइंडिंग्स को रोंग आ सकती हैं। तो रोंग रिसर्च फाइंडिंग्स को करेक्ट करने के लिए एक रिसर्च मेथड्स बनाए गए। Why question? There are many types of explanations. Okay, some more satisfying than others. For example, suppose we ask why a society has a long post-mortem sex taboo, which could guess that the people in that society want to abstain from sex for a year or so after the birth of a baby. Is this an explanation? Yes, because it does suggest that people have a purpose in practicing the custom. Okay, long post-partum sex taboo. Why? सोसाइटी को क्यों होता है, जब बच्चा हो जाता है तो लॉन्ग टाइम तक सेक्स नहीं किया जाता, 1 साल तक सोसाइटीज में सेक्स नहीं किया जाता है, बर्थ ऑफ ए बेबी। यस, people have a purpose, but such an explanation would not be very satisfying because it does not specify what the purpose of the custom might be. How about the idea of that people have long post-mortem sex taboo because it is their tradition? That too is an explanation, but it is not satisfactory for a different reason. It is a tautology that the thing to be explained is being explained by itself, by its prior existence. To explain something in terms of tradition is to say that people do it because they always do it.
they already do it, which is not informative. What kinds of explanation are more satisfactory? Then in science investigators try to achieve two kinds of explanations. होता क्या है, वेरिएबल, अब दो तरह की एक्सप्लेनेशन जो है वो रिसर्च से निकालता है. फॉर एग्जांपल सेक्स पोस्ट बेबी आफ्टर बर्थ बेबी, व्हाई सेक्स इज अ टैबू. इसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं. एक एक्सप्लेनेशन तो ये है इसकी कि वो 1 साल तक सेक्स अवॉइड करना चाहते हैं बेबी के बर्थ के बाद, क्योंकि बेबी का बर्थ हुआ है. और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये उनका ट्रेडिशन है, पोस्ट पार्टम सेक्स टैबू उनका एक ट्रेडिशन है. ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है. तो ओके, तो अब ठीक है, तो अब देखा जाए कि अब किस तरह की एक्सप्लेनेशन जो है सेटिस्फैक्टरी है. ओके, तो दो तरह की एक्सप्लेनेशन जो है कोशिश करता है रिसर्चर निकालने की. एक होता है एसोसिएशन. तो so to explain why the water left outside in the base froze, we say that it was cold last night that water freezes at 0 degrees Celsius. The statement that water solidifies at 32 degree Fahrenheit is a statement of a variable or an association between two variables. Okay, so the relationship are called laws, which when almost all scientists accept them. Physical sciences में क्या होता है, ठीक है, लॉस क्या होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि सारे साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं. जैसे वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सारे साइंटिस्ट इस चीज को मानते हैं. तो वाटर और टेम्परेचर का दो वेरिएबल है. वाटर जो है वो फ्रीज कर जाता है टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है. तो एसोसिएशन कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है. ओके, तो ए थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि वाटर और किसका, वाटर और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन है. थ्योरी एक्सप्लेन करती है, थ्योरी एसोसिएशन और रिलेशनशिप. ओके, तो अब सोशल साइंसेस में की बात करें, ह्यूमैनिस्टिक की बात करें, टू और मोर वेरिएबल्स टेंड टू रिलेटेड इन ए, हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. हम कहते हैं कि वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है, इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी है. ओके, कुछ एक्सेप्शंस भी है, क्योंकि व्हाई सोसाइटी हैज लॉन्ग पास्ट पार्टम सेक्स टैबू, वी कैन पॉइंट टू द एसोसिएशन दैट जॉन वाइटिंग फाउंड इन ए वर्ल्ड वाइड सैंपल ऑफ सोसाइटीज. Societies with apparently low protein diets tend to have long postpartum sex taboo. We call the relationship between low protein diet and the sex taboo is statistical association, which means that observed relationship is unlikely to be due to chance. तो स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन मतलब होता है कि दो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स में जो कि चांस की वजह से नहीं है, जो कि है. ओके, तो अब देखा जाए कि क्योंकि जॉन वाइटिंग ने एक स्टडी की, तो उसने कहा कि जो लो प्रोटीन डाइट होती है जिन लोगों में, वो लोग जो है वो लोग लॉन्ग पास्ट पोस्ट पार्टम सेक्स टैबू में बिलीव करते हैं. तो ये सोसाइटी की स्टडी की जॉन वाइटिंग ने. तो आपको इन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, सीखना है क्या मैं बता रहा हूं. ओके गाइस, सो आपने इनको जब मैंने समझना है तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, पूरी जी जान से लगाऊंगा, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ मैं काम करूंगा और आपको जी जान से मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी ऑप्शनल के लिए जी जान से मैं मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा. तो देखिए अब
साइंस, फिजिकल साइंस की बात करें तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है। तो ये एक लॉ है, क्योंकि सारे साइंटिस्ट ये एसोसिएशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो थ्योरी कहती है कि हाँ रिलेशनशिप है, प्रोबेबिलिटी है, कि talks about the probability of the relationship between low protein diets and the sex taboo. Okay, we can point to the association in a wide sample of societies. Theories की बात करें, even though laws and statistical association explained by relating what is to be explained to other things, you want to know more why those laws or association exist. Why does water freeze at 30 degree? Why do society with low protein diet tend to have long postpartum sex taboo? Therefore, scientists try to formulate theories that will explain the observed relationship between relationship, that is laws and statistical association. तो हम देखें, हम जो थ्योरी क्यों हम बनाते हैं, वो हम बताते हैं कि हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, हम रिलेशनशिप स्टडी हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, एसोसिएशन एंड स्टडीज। तो थ्योरीज की बात करें तो स्टैटिस्टिक रिश्ता बनाया जाता है ना वेरिएबल्स के बीच में, तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरीज की वजह से हम वाई का आंसर देते हैं कि हाँ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है पोस्टपार्टम सेक्स टैबू में और लो प्रोटीन डाइट में। वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी से, एक्सप्लेन करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। रिलेशनशिप होता है और रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन की जाती है। ओके, सो आप देखिए, आप थ्योरीज जो हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप, तो इसी रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये भला क्या है, थ्योरीज क्या है। तो अब देखिए, let us return to the question of why some societies have long postpartum sex taboo. We have already seen that a non-statistical association can be used to help explain it. If a society has a low protein diet, it will generally have a long postpartum sex taboo. But most people would ask additional question: why does a low protein diet explain the why does a low protein diet explain the taboo? What is the mechanism by which a society with which a diet develops the custom of long postpartum sex taboo? A theory is intended to answer those questions. जॉन वाइटिंग थ्योरी दी उन्होंने कि अब हो सकता है कि कुछ कंडीशंस की वजह से ये सब चीजें होती हों। ट्रॉपिकल एरियाज में वेयर द मेजर फूड स्टैपल्स आर लो are low in proteins, babies are vulnerable to the proteins deficiency disease called kwashiorkor. But if a baby could continue to nurse for a long time, it might would have a chance to survive. The post, the post, the postpartum sex taboo might be adaptive. Whiting's theory suggests because it increases the likelihood of a baby's survival. तो ये इन्होंने रीजन दिया, ये थ्योरी है। अब देखिए, मैंने बताया पोस्ट पार्टम सेक्सुअल बिहेवियर। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं कि क्या होता है पोस्ट पार्टम सेक्स टैबू। देखिए, अब आप हमने एसोसिएशन तो समझ लिया कि हाँ लो प्रोटीन डाइट की वजह से
होता क्या है, पोस्ट पार्टम सेक्स टैबू। तो अब आफ्टर फॉर पोस्टमार्टम ये कल्चर रूल्स हैं, sex after childbirth often for 40 days to several years, rooted in belief that sex harms the baby, breast milk cause sickness, poor growth, pollutes the mother, linking it to spiritual impurity. So बहुत सारे कारण है इसके। ओके तो अब इसके रीजन जो बताए हैं थ्योरीज में, वो बताए हैं जॉन बाइटिंग ने कि ऐसा इसलिए रहा होगा कि वो सेक्स नहीं करते होंगे 40 साल अवॉइड करना सेक्स को फ्रॉम 40 टू सेवरल ईयर्स। इसका कारण ये होगा, ये है कि वहाँ के लोगों की डाइट जो होती है वो लो होती है, प्रोटीन उनमें नहीं होता, इससे बच्चे को डिसीज होने का खतरा रहता है, इसीलिए वो अब ब्रेस्ट मिल्क को पोल्यूट कर सकता है, मदर्स की हेल्थ को डिटीरियरेट कर सकता है, इसलिए स्ट्रेस ना हो मदर को, है ना। तो मैटरनल रोल, तो मैटरनल रोल ताकि अपना वो रोल जो है वो बच्चे की केयर में लगाए। ओके तो ये चीजें हैं, कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, ये कारण बताया इसने जॉन वाइटिंग ने। ओके अब ये कारण था। सो डिफरेंसेस बिटवीन ए थ्योरी एंड ए थ्योरी इज मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी, an association usually states that simply the relationship between two or more measured variable. Another difference is that theory may mention some things that are observable, such as the presence of a long pause pattern sex taboo. It contains other concepts or statements that could not be observed. For example, with regard to Whiting's theory, it would be difficult to find out if the people who adopted the sex of a long custom of a long postpartum sex taboo had some awareness that babies would there be having a better chance to survive. Then two, the concept of adaptability. Why theories cannot be proved? Many people think that theories they learned in physics or chemistry courses have been proved. Unfortunately, many students get the impression because the teachers present lessons in an authoritative manner. Scientists and philosophers of science now generally agree that no theory can be said to be proved or unquestionable true, although some theories might have considerable evidence opposing them, because of the concepts and ideas in theories are not directly observable and therefore not directly. So sometimes they may not be observed or verified directly. Falsification, hypothesis, something predict करना. Okay. So अब theoretical construct की बात करें, theoretical construct हो गया जो कि वेरीफाई नहीं कर सकते हम डायरेक्टली, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। Scientists may try to explain how light behaves by postulating that it consists of particles called photons, but photons cannot be observed even with the most powerful microscope. So exactly what a photon looks like and exactly how it works remain in the unprovable. The photon is theoretical construct, sometimes therefore cannot be observed or verified directly. Because all theories contain such constructs, theories cannot be proved entirely or with absolute certainty. हम थ्योरी को प्रूफ नहीं कर सकते एंटायरली के साथ, नहीं कर सकते हम एंटायरली के साथ। अब लाइट है, लाइट्स में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स को हम अब डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप्स में भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। The main advantage of theory, then why as kind of explanations that it might lead to, तो क्या होगा कि लैंग्वेज जो है वो बड़ी नॉलेज बढ़ाता तो है ना थ्योरी, ठीक है। So we could expect the certain changes would result in taboo's disappearance. For example, suppose people adopted to either some form of birth control or began to give supplementary high protein food to babies. With birth control, a family could space births without abstaining from sex. So we could expect the custom of post-mortem abstinence to disappear. Additionally, we would expect it to disappear with protein supplements. For babies, for example, kwashiorkor would then be less likely to affect the babies. तो ये falsification. ओके तो falsification की बात अगर हम पढ़े, थ्योरीज की बात अगर हम करें, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
तो हम थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है। अब फाल्सिफिकेशन क्या है? शो दैट ए थ्योरी सीम्स टू बी रॉन्ग बाय फाइंडिंग दैट implications or predictions derivable from it are not consistent with the objectively collected data. हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हम क्या करते हैं? हम थ्योरीज को पढ़ते हैं, हम थ्योरीज के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। प्रेडिक्शंस which may be derived from theories about how variables are related. Predictions which may be derived from theories about how variables are related. So theoretical orientation. What is theoretical orientation? How phenomena are to be explained. Early evolutionists. Let us see. So I have discussed you कि हम थ्योरी को हम इजिली हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। हम एसोसिएशन रिलेशनशिप स्टडी करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, रिसर्च मेथड्स की तरफ जा रहे हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, तो देखा जाए कि एवोल्यूशनिज्म 19th सेंचुरी में ये आया। बी टेलर, एडवर्ड बी टेलर, लॉइस मॉर्गन। ओके, तो पहले सिंपल सोसाइटीज होती थी, फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हो गई, रेस थ्योरी। तो एवोल्यूशनिज्म आल्सो अनदर ब्रांच ऑफ अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, वन दैट differ in their behaviors was because they represented subspecies of humans. क्यों ऐसा क्यों है? रेस थ्योरी ये कहती है कि अलग अलग रेसेस होती हैं, इसीलिए उनका कल्चर जो है वो वेरी करता है। कल्चर जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाता है, कल्चर वेरी करता है अलग अलग, क्योंकि वो अलग अलग रेसेस से बिलोंग करती है। तो मेंबर्स जो होते थे अनसिविलाइज्ड रेस वेयर बाय देयर नेचर सिविलाइज नहीं थे, और जो कुछ सिविलाइज्ड रेस के थे। ओके, Bossian anthropology, the Franz Boas, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी एवोल्यूशनरी जो रेन था अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी में, उसका खत्म हो गया। एक फ्रांस बोआस थे, ओके, जिसने डिसएग्री किया एवोल्यूशनिस्ट से। यूनिवर्सल लॉज गवर्नड ऑल ह्यूमन कल्चर। रोस pointed out that these be 19th century armchair anthropologists lacked sufficient data to formulate many useful generalization. रेस थ्योरी को भी अपोज किया। ओके, तो बोस ने ये कहा कि आपको किसी को पढ़ना है तो उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो फैक्ट्स के ऊपर रिलाई करना है, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं रिलाई करना है। तो ये पहले आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, एक्सप्लेनिंग व्हाई कल्चर वेरिड, इकोलॉजिकल एंड इंटरप्रिटेटिव। कल्चर इकोलॉजी, तो कल्चर इकोलॉजी इकोलॉजिकल अप्रोच जूलियन स्टीवर्ट था जिसने स्टडी किया कल्चर इकोलॉजी को, कि कल्चर के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेटिव थ्योरी, और इंटरप्रिटेटिव थ्योरी की बात करें तो क्लिफोर्ड गिच ने दी। कल्चर इज लाइक ए, कल्चर क्या है? एक लिटरेरी टेक्स्ट की तरह है जिसको इंटरप्रेटेड करना है, इसको इसका मीनिंग समझना है, लिटरेरी टेक्स्ट की तरह है, इसने बताया। ओके, टेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। अब जैसे यानोमामा इंडियंस हैं ब्राजील के, यानोमामा ट्राइब है ब्राजील की, तो वो रूट क्रॉप्स के ऊपर, कसावा रूट क्रॉप्स या फिर प्लांट लेन्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लो प्रोटीन डाइट होती है उनकी। सैंपलिंग हम करते हैं, है ना? तो सैंपल का मतलब यह होता है रैंडम सैंपल। सैंपल क्या होता है? देखो, सैंपल आपको लेना होगा, बड़ा सैंपल लेना है, छोटा सैंपल लेना है।
इन विच ऑल केसेस रैंडम सैंपल वो सैंपल होता है जिसमें सभी के इंक्लूड होने के चांसेस होते हैं। ओके तो उसके बाद एविडेंस टू शेक मिस्टेकन बिलीफ। लेट अस सी। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें वो हम पढ़ते हैं। पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन की बात करें, क्रॉस कल्चरल रिसर्च की बात करें, ओके, डिस्टेंट पास्ट हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें, फॉसिल्स क्या है। देखो फॉसिल्स क्या होते हैं ये चैप्टर 2 में दिखाया हुआ है। लिथिक क्या है, द टेक्निकल नेम फॉर टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन। पैलियोलिथिक मीन्स, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, वो चीजें जो स्टोन से बड़ी होती हैं। टूल्स, इको फैक्ट्स, इको फैक्ट्स born from animal that people have eaten। फॉसिल्स क्या है, hardened remains of plants and animals। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं जो कि पुराने समय में रहे हों। प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। इको फैक्ट्स, नेचुरल आइटम्स दैट ह्यूमंस हैव यूज्ड सच एज द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स ईटन बाय ह्यूमंस और प्लांट्स पोलन्स फाउंड ऑन आर्कियोलॉजिकल साइट्स। इको फैक्ट्स हमें मिलते हैं। आर्टिफैक्ट्स, artifacts of human manufacture that cannot be removed from an archaeological site. For example, buildings, hearths, storage pits are examples of features। Features are kinds of artifacts। Sites, साइट्स वो होगी जहां लोकेशन है, यहां से हमें मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं। लोकेशन वेयर द मटेरियल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी हैव बीन प्रिजर्व्ड इन ए वे दैट आर्कियोलॉजिकल और पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन रिकवर देम। एग्जीबिशन, द केयरफुल रिमूव, एग्जीबिशन करना, द रिमूवल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपॉजिट्स। द रिकवरी ऑफ, एग्जीबिशन का मतलब होता है आर्टिफैक्ट्स की आप रिकवरी करते हो, इको फैक्ट्स की आप रिकवरी करते हो। इको फैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, फॉसिल्स, सॉइल से हम निकालते हैं। इको फैक्ट्स को सुना आपने, क्या नाम होता है। साइट्स लोकेशंस होती हैं जहां पे पहली ह्यूमन एक्टिविटी हुई थी, और मैंने बताया था आपको कि ये कौन बताता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ह्यूमन यहाँ पे रहे होंगे, तो ये साइट से पता चलता है। ओके सो context, the relationship between and among artifacts, eco facts, fossils, features। ओके तो ये आपको पता होना चाहिए। डेटिंग हम करते हैं, रिसर्च मेथड्स हैं इसके अलग अलग। इको फैक्ट्स क्या है, आर्टिफैक्ट्स क्या है। ओके तो फॉर एग्जांपल रॉबर्ट मार्टिन ने एस्टिमेट किया अर्थ हैज प्रोबेबली सीन 6000 प्राइमेट स्पीसीज, remains of only 3% of those species have been found। सिर्फ 3% रिमेन्स ही हमने स्पीसीज के मिले हैं। तो कम से कम 6000 स्पीसीज थे अर्थ पे, रहे हैं पास्ट में, तो उसमें से सिर्फ 3% लोगों के रिमेन्स ही, स्पीसीज ही हमने फाउंड मिले हैं। Primate paleontologists cannot identify most of the evolutionary connection between the early and later forms। The task is purely difficult with the small mammals such as early primates, which are less likely than large animals to be preserved in the fossil records। अब जो छोटे छोटे मैमल्स थे वो तो उनके रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे, जब जिनके फॉसिल्स रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश की गई। अब इसमें देखा जाए कि मैंने बताया आपको, रॉबर्ट मार्टिन ने कहा कि कई हजार स्पीसीज हैं, 6000 स्पीसीज हैं अर्थ के ऊपर, इनमें से सिर्फ 3% के स्पीसीज के हमें रिमेन्स ही हमने मिले हैं। तो इसका मतलब अभी बहुत हिस्ट्री
एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा। हिस्ट्री अभी रिकवर करना बाकी है। इकोफैक्ट्स रिकवर करना बाकी है। पिट्स, हर्थ, ओके। तो साइट्स क्या है? एविडेंस ऑफ द पास्ट, एग्जीबिशन की जाती है। आर्कियोलॉजिकल जो डिपॉजिट्स है उसको रिमूव किया जाता है। सो जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं 99% उसमें लिथिक्स ही हैं। आर्टिफैक्ट्स, एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। आर्टिफैक्ट्स, एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। बड़े सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इकोफैक्ट्स मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, फीचर्स मिले हैं। ओके, तो अभी 4 तरह के एविडेंसेस जो है पैली एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो मिलते हैं। ओके, कल्चर हिस्ट्री की, किस तरह का कल्चर हिस्ट्री में मिलता है? तो क्या हुआ था पुराने टाइम में, कहाँ लोग रहते थे, किस तरह के टूल्स वो इस्तेमाल करते थे। अब फॉसिल्स रिमेन्स मिले हैं, हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, हमें इको फैक्ट्स मिले हैं, बोन्स मिली हैं। जैसे बोन्स हैं वो सारे फैक्ट्स जो कि एनिमल ह्यूमंस ने कंज्यूम करके उनके रिमेन्स छूट गए थे। तो प्राइमरी गोल था आर्कियोलॉजी का कल्चर हिस्ट्री करना, एवोल्यूशन को समझना कि ह्यूमन एवोल्यूशन को समझना, पास्ट को समझना। ओके, तो अब 4 तरह के एविडेंसेस मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, इको फैक्ट्स मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स जैसे हर्थ हो गए, है ना, ऐश हो गई। ओके, गुड एग्जांपल्स। ठीक है, तो हर्थ हो गई जहां पे वो आग जलाते हैं। Artifacts of human manufacture that cannot be removed from an archaeological site. That cannot be removed from archaeological site. Fossils है, तो जो remains of animals and plants that lived in the past. Natural items हैं ये that humans have used, such as the remains of animals eaten. Lithics, ecofacts, fossils, ये सारे facts हैं. Study the distant past. Human research की बात की जाए, इथनो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इथनोलॉजी हम पढ़ते हैं, इथनोग्राफर हमें पता है क्या है। हिस्टोरिकल रिसर्च, हम जब रिटन रिकॉर्ड्स थे उस टाइम पीरियड की हम जब रिसर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। तो रिपोर्ट्स बनाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अकाउंट्स बनाते हैं मिशनरीज, ट्रेडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक्सप्लोरर्स। Historians like historians cannot simply assume that all the documents they find are simply descriptions of fact. They were written by very different kind of people with a very different goals and purpose. Historical research. तो हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है? बेसिकली हमें जो मटेरियल मिलता है अबाउट ए सिंगल सोसाइटी एट मोर देन वन पॉइंट इन टाइम, डिस्क्रिप्टिव मटेरियल मिलता है, हिस्टोरिकल रिसर्च।
क्रॉस कल्चरल रिसर्च की बात करें, रीजनल कंट्रोल्ड कंपैरिजंस की बात करें, इथनोग्राफी एज सोर्स ऑफ मटेरियल, इथनोग्राफी इज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विद इन कल्चर्स कंपैरिजन हम करते हैं। इथनोग्राफीज क्या है? ओके, हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हम रहते हैं उन लोगों के पास जो कि जिनकी हमने ऑब्जर्व करना है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फील्ड वर्क क्या होता है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम लेते हैं। First hand experience with the people being studied and the usual means by which anthropological information is obtained, regardless of other methods that anthropologists used. Example, census, surveys, field work usually involves participant observation for an extended period of time, often a year or a year. See participant observation. So participant observation, field work, ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो उसमें हिस्सा लेते हैं, उनके फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हैं। The cornerstone है modern anthropology का, is the mean by which most anthropological information is obtained. Field work, first hand experience with the people being studied, but fieldwork may also involve other methods such as conducting a census, conducting a survey करते हैं। फील्ड वर्क में बहुत कुछ आता है। तो इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंथ्रोपोलॉजी का, कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, फील्ड वर्क। इन ए रीजनल कंट्रोल्ड कंपैरिजन, एक होता है रीजनल कंट्रोल्ड कंपैरिजन। आइए देखते हैं इसमें हम क्या है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंपेयर इथनोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोसाइटीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन। अब पर्टिकुलर रीजन में जो कल्चर हमें मिलते हैं, सोसाइटी हमें मिलती है, उनका हम कंपैरिजन करते हैं। सिमिलर उनकी हिस्ट्री है, सिमिलर एनवायरनमेंट है, रीजनल कंट्रोल्ड कंपैरिजन। क्रॉस कल्चरल रिसर्च विद इन कल्चर कंपैरिजन। एथनोग्राफर एज ए सोर्स ऑफ मटेरियल। इथनोग्राफर्स होता क्या है? इथनोग्राफर्स अब वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं इथनोग्राफर्स के पास, who are trying to understand why a patient has certain symptoms of illness. Ethnographies participant observations हैं। to help you interpret what you observe, आपने इंटरप्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, you will see many weddings in a village of 200 people in a year or two of field. So how can you know who will be a good informant? It is obviously important to find out who are easy to talk to and who understand what information you need. किसको आप जो चाहते हैं वो information provide कर सकता है। But how do you know who is knowledgeable? You can't just assume that the people you get along will have the most knowledge. Besides, knowledge is often specialized. One person may know more than some other subjects than others. At a minimum, you have to try out a few different people to compare what they tell you about a subject. पहले तो आपने एक ग्रुप ऑफ लोगों से बात करनी है और आपने पता लगाना है कि मेरे को किसने क्या बताया है। बट इफ दे डिसएग्री, हाउ डू यू नो हु इज मोर ट्रस्टवर्दी और एक्यूरेट? ऐसे तो बात करी है। फॉर्मल मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प एंथ्रोपोलॉजिस्ट सेलेक्ट द मोस्ट नॉलेजेबल इन्फॉर्मेंट्स। Called the cultural consensus model relies on the principle that things most informants agree on the probably culture. After you establish which things appear to be cultural by asking a sample of informants the same question about a particular cultural domain, it will be easy to discover which informants are very likely to give answer that closely match the cultural consensus. Cultural consensus आपने देखना है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ो, इसको समझो, अंडरस्टैंड करो, आगे मत बढ़ो बिना ऐसे पढ़े। समझो इसको, बिना समझे इसको आगे नहीं बढ़ना है आपने। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, तो आप कल्चर को समझते हैं, आप लोगों के बीच रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं,
तो फेस्टिवल्स जब अटेंड करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन इन्फॉर्मेंट है आपके लिए? तो आप क्या करते हो, कुछ लोगों से बात करते हो और पता लगाते हो कि क्या इनमें लोगों के जो ओपिनियंस है, क्या इनमें आपस में कंसेंसस है या नहीं है। ठीक है, फिर आप कुछ और लोगों का करिए, जानकारी प्राप्त करिए, तो फिर उनको कंपेयर करिए कल्चरल कंसेंसस के साथ, तो उससे आपको जानकारी मिलेगी कि कौन आपको इन्फॉर्मेंट जो है वो अच्छे तरीके से दे सकता है। ठीक है, तो नॉलेजेबल पीपल आपको देखने पड़ेंगे। ओके, हु विल वर्क, हु विल विलिंग टू वर्क विथ यू to help you interpret what you observe and tell you what about मैं दोबारा से इसको पढ़ रहा हूँ, and tell you what about aspects of the culture that you may not have a chance to see or may not be entitled to see. For example, it is not likely that you will see many weddings in a village of 200 people in a year or two of field work. See, how can you know who will be a good informant? It is obviously important to find people who are easy to talk to. आपने ये देखना है कि आप किससे आसानी से बात कर सकते हो, who understand what information you need, but how do you know who is knowledgeable? You can't just assume that people you get along with have the most knowledge. ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिससे मिल रहे हैं जो इजिली अवेलेबल है उसके पास सारी नॉलेज होगी, नहीं। You have to try out a few different people to compare what they tell you about a subject. What if they disagree? How do you know who is more trustworthy or accurate? Fortunately, formal methods have been developed to select the most knowledgeable informants. One method, called the cultural consensus model, relies on the principle that the things most informants agree. जिस चीज पे मोस्ट इन्फॉर्मेंट्स एग्री होते हैं उसी को हम कल्चरल कंसेंसस बोलते हैं. Which things appear to be cultural by asking a sample of informants the same question, a particular cultural domain, which will be easy to discover which informants are likely to give answers that closely match the cultural consensus. These individuals are your best bets to be the most knowledgeable in that domain. It may seem paradoxical, but the most knowledgeable and helpful individuals are more necessarily typical individuals. Many anthropologists have pointed out that the key informants are likely to feel somewhat marginal in their culture. They want to spend so much time with a visiting anthropologist. Okay, guys. तो चलिए, मैंने एक और पॉइंट आपको कंसर्न कर दिया, आगे बढ़िए। एविडेंस हमने पास्ट किए, साइट्स के बारे, एग्जीबिशन की स्ट्रेटिफाइड। तो एक आर्कियोलॉजिकल डिपॉजिट होता है जहां पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, स्ट्राटास होते हैं। अब पढ़नी है इसको, डरना नहीं है, पढ़ना है इसको, घबराना नहीं है। Most exhibition by professional archaeologists today is done only when a site is threatened with destruction, and then only by highly trained personnel using rigorous technique. An archaeologist and paleoanthropologists collect data in a basically the same way, with one important difference. Archaeologists are more concerned with recovering intact features. जो फीचर्स को रिकवर करना होता है, आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करना होता है, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर मोस्ट रिकवरिंग इंटैक्ट फॉसिल्स। फॉसिल्स को वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और वो रिकवरी करने की कोशिश करते हैं जो है फीचर्स को। ओके, अप्रोचेस, anthropology archaeologists try to seek out undisturbed site while intact features can be found. Disturbance are a plus of paleoanthropologists because disturbed sites may make finding fossil easier. They may be eroded out of the surface of the ground. Okay, so you may have gauged the impression from our discussion that archaeologists and paleoanthropologists analyze artifacts, ecofacts, fossils, and features as individual objects separate from one another. Nothing could be farther from the truth. In fact, putting these materials in context with one another is really what archaeologists and paleoanthropologists, अब सब जो है वो चीजें जो है, जितने भी फैक्ट्स मिले हैं उनको इकट्ठे करना है, जो आइसोलेशन में मिले हैं उनके आपस में उनको कंपेयर करना है, उनको स्टडी करना है, रिलेट करना है, उनको पुट करना है, पुटिंग इट ऑल इन कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेटर्स मिले हैं अलग अलग, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है,
No, but if we know something about the relationship between, for example, we know that M was the first letter found and that A and E were found next to the M, but in reverse order, that one letter was found between E and the N was found between I and G, knowing in what context the letters meaning, and meaning is exactly what context give us to artifacts ecological subject. मीनिंग निकालना है, context, the relationship among the artifacts, context निकालना है आपने. ओके, डेटिंग द एविडेंस फ्रॉम द पास्ट. अब डेटिंग मेथड्स क्या है एंड इम्पॉर्टेंट, पढ़िए, इससे आगे हम और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस को हम स्टडी करते हैं कि एविडेंस जो है पास्ट के एविडेंस है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. कैसे आप डेटिंग कैसे करते हैं उनको आपने समझना है. तो आप देखिए, इसको जब कंटेक्स्ट में आप पुट करते हैं तो आपको समझ आती है चीजें. तो रिलेटिव डेटिंग होती है, हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ पुटिंग आर्टिफैक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स इनटू कॉन्टेक्स्ट इज पुटिंग देम इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हम क्या करते हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं. ठीक है, कितना ओल्ड जो है वो फॉसिल्स हैं. रिलेटिव डेटिंग मेथड वेयर द ओनली मेथड्स आर अवेलेबल. The last half century has seen some advances in absolute dating, including techniques that allow the dating of earliest phase of primate evolution. Relative dating is used to determine the age of a specimen और डिपॉजिट. स्पेसिमेन की एज हम निकाल पाते हैं. और एब्सोल्यूट और क्रोनोमेट्रिक डेटिंग, हम कितना ओल्ड एक स्पेसिमेन है, डिपॉजिट है, वो हम निकालते हैं. रिलेटिव डेटिंग मेथड स्ट्रेटिग्राफी है. ठीक है, तो लेयरिंग, हम रॉक सॉइल की लेयरिंग कैसी हुई है, कैसे लेयरिंग हुई है सॉइल्स की, रॉक्स की, है ना. ऊपर रॉक्स मिले हैं वो यंगर हैं, जो नीचे रॉक्स मिले हैं वो ओल्डर हैं. ओल्डर लेयर्स आर जनरली लोअर देन मोर रिसेंट लेयर्स. ओल्डर लेयर्स आर जनरली डीपर देन, जो ओल्डर लेयर्स होंगी वो डीपर होंगी और जो रिसेंट लेयर्स होंगी वो ऊपर वाली होंगी. ओके, तो इससे हमें पता चलता है. ओके, आप देखिए, जब स्ट्रेटिग्राफी आप करते हैं ओल्ड वाई जॉर्ज की, important site है. Different artifacts, ecofacts are used and indicators of relative age in different areas of the world. In Africa, elephants, pigs, horses have been particularly important in establishing stratigraphic sequence. For example, the stratigraphy of Olduvai Gorge, an important site where human fossils have been found, were established in part of the basis of fossil peaks. Fossil peaks के basis पे the various species of peaks in the successive strata are different, allowing archaeologists and paleoanthropologists to differentiate the strata based on the species found within them. Once the stratigraphy of the area established, the relative ages of two different fossils is the same or different sites are indicated by the. Okay, so if a site has been disturbed, stratigraphy will not be a satisfactory way to determine. अगर साइट डिस्टर्ब नहीं हुई होगी तो स्ट्रैटिग्राफी से वो चीजें तभी हो सकती हैं. स्ट्रैटिग्राफी का साइट डिस्टर्ब हो गई है. ओके, वास्ट हो सकता है, कोई साइड वास्ट हो गई है, ब्लोन टुगेदर विंड से, विंड्स. ओके, लैंडस्लाइड, अर्लियर लेयर को लेटर, अर्लियर लेयर लेटर लेयर के ऊपर आ गई हो. ओके, तो एब्सोल्यूट और क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड. सो स्ट्रैटिग्राफी, fossils are laid successive layers. Older layers are generally deeper or lower layer than more recent layers. Stratigraphy, absolute dating method, chronometric dating, indicator artifacts.
items that changes rapidly, that change rapidly, relatively rapidly, and which thus can be used to indicate the relative age of associated items. Many of the absolute dating methods are based on the decay of radio uh, active isotopes. तो हम इसको स्टडी करते हैं, डेटिंग द एविडेंसेस फ्रॉम द पास्ट। तो रिलेटिव डेटिंग मेथड है। ओल्ड बाय जॉर्ज की बात करें तो एब्सोल्यूट रिलेटिव डेटिंग मेथड की बात करें, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड की बात करें, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके होता है, बिकॉज द रेट ऑफ डिके इज नोन, the age of the specimen can be estimated within a range of possible error. रेडियोकार्बन और कार्बन 14 डेटिंग, तो डिके ऑफ कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का डिके का हमें पता है कि कैसे डिके होता है। तो इससे पता चलता है 50,000 साल पुराने half life, the time it takes for half of the items of radioactive substance to decay into atoms of different substance. decay हो जाता है जब half तक, तो उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो आप देखिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग, तो ये रिलेटिव डेटिंग मेथड है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि डिके ऑफ रेडियो एक्टिव पोटेशियम आर्गन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग 5000 साल से 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड वाले पोटेशियम आर्गन मेथड, इससे हम मिनरल्स भी, ये रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग से हम ऑर्गेनिक मैटर का पता लगाते हैं, और पोटेशियम आर्गन डेटिंग से हम रॉक्स का पता लगाते हैं, मिनरल्स का पता लगाते हैं, डेटिंग का पता लगाते हैं। तो हाफ लाइफ कितनी होती है? ओके, तो आर लिविंग मैटर पोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन, हर एक लिविंग मैटर में होता है। Okay, radioactive carbon produced when nitrogen 14 is bombarded by cosmic rays is absorbed from the air by plants and then ingested by animals and that eat the plants. After an organism dies, it no longer takes any form of the radioactive carbon. Carbon 14 decays at a slow but steady pace and reverts to nitrogen 14. By decay, we mean that 14C gives off a certain amount of beta radiation per minute. The rate at which carbon decay its half-life is known as a half-life of 5,730 years. In other words, half of the original amount of into organic matter will have disintegrated after the remaining will have disintegrated after another. After about 50,000 years, the amount of 14C remaining in the organic matter is too small to permit relative dating. तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग से भी हम करते हैं मेजर। ओके, सो पोटेशियम argon rich minerals in rocks, not the fossils that may have been found in the rock. पोटेशियम आर्गन डेटिंग, उसके बाद AR डेटिंग, ethics in anthropological research. Rebury my ancestors. Archaeologists must be aware of the effects of their work on, जब वो काम करते हैं तो उनके कामों का असर क्या होता है। एग्जिबिशन ऑफ एंसेस्टर रिमेन्स टू बी ऑफेंसिव, कुछ लोग जो है वो ट्राइबल लोग एग्जिबिशन को अपोज करते हैं, ये भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारी एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं। एक तो लोगों को बताना है कि आप किसकी क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। ओके, कोड ऑफ एथिक्स, और उनको बताओ कि वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो डायरेक्ट डेसेंडेंट्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीपल दे आर स्टडिंग अबाउट द रिसर्च के बारे में बताओ, उनके राइट्स के बारे में बताओ। फेक नेम्स, इन्फॉर्मेंट्स आर ऑफन गिवन
fake names. Many anthropologists have extended this principle to use a fake name for the community as well. But the decision to create a fake name for a community is questionable in many circumstances. For anthropologists to out, and it is not hard for anyone interested in to figure out where they lived and worked. Comments may have to be asked for research clearance, which means that they know where the anthropologist is going to do fieldwork. Some people who are studying are often proud of their place and their customs, and they may be insulted if their community is large something else is called something else. Third, important geographic information is often vital to understand the community. You have to reveal if it is located at the confluence of two major rivers or if it is the trading center of the region. Okay, तो आपने देखा कि क्या होता है, थ्योरीज के बारे में स्टडी किया। ओके, आप जेनेटिक्स के बारे में भी आप स्टडी करोगे, है ना। तो अब देखा जाए तो यूनिवर्स जो है एग्जिस्टेंस में है कब से, 15 बिलियन ईयर से। Beginning of our solar system, origin of life on earth. In the evening of December 31, the first human-like primate appear. About 4 million years ago, the first human-like beings appeared. Modern looking humans evolved only about 1 lakh 4 मिलियन साल पहले ह्यूमन की तरह निकले आए जीव। उसके बाद 1 लाख साल पहले मॉडर्न लुकिंग ह्यूमंस इवॉल्व हुए। 55 से 65 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट प्राइमेट्स आए। 35 मिलियन ईयर्स अगो मंकी अपीयर हुए। 15 मिलियन ईयर्स अगो 20 million years after the appearance of monkeys and apes, ape-like ancestors of humans probably emerged. Ape-like ancestors. After 4 million years ago, first human-like being appeared. 4 million years ago. तो इनको आपको पता पढ़ना होगा। तो हम ये थर्ड चैप्टर है, खैर इसको बाद में पढ़ेंगे हम। पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, तो ये भी रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है पोटेशियम की, उसकी स्टडी करते हैं। The half-life of its known quantity, so the age of material containing potassium can be measured. जो उसमें पोटेशियम होता है ना, उसकी एज हम निकालते हैं। तो पोटेशियम का हाफ लाइफ जो है वो बड़ी ज़्यादा होती है, 1303 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सो पोटेशियम आर्गन डेटिंग हम 5000 साल से लेके हम 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड के सैंपल्स हम डेट कर सकते हैं। Potassium rich minerals in rocks, not the fossils that may be found in the rocks. A very high temperature and such as occurs in volcanic event drives of any original argon in the material. The amount of argon that accumulates afterwards from the decay of radioactive potassium is directly related to the amount of time since the volcanic erupt. This type of dating has been extremely useful in East Africa, where volcanic events have occurred frequently since the Miocene, which began 24 million years ago. Okay, so our problem with the is the amount of potassium and argon must be measured on different rock samples. Researchers must assume that the potassium and argon are evenly distributed in all the rock samples from a particular stratum. Okay, so ethics भी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में आपको अंडरस्टैंड करना होता है। ऑनेस्ट रिपोर्टिंग आपने करनी है। सुपीरियर उनको ऐसे नहीं समझना है कि वो उनको बारे में कुछ अनपढ़ लोग नहीं समझना है उनको, ठीक है, उनको अनपढ़ नहीं समझना है। ओके, उनको इन्फीरियर नहीं समझना है, उनको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बताने हैं। ओके, ऑनेस्टी रिपोर्टिंग करनी है, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करनी है। ओके, अब प्रिजर्विंग द रिमेन्स ऑफ एंसेस्टर्स टू बी ऑफेंसिव, एंसेस्टर्स के रिमेन्स को प्रिजर्व करना उसको ऑफेंसिव मानते हैं, इसीलिए ये भी एक इशू बन जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट मस्ट बी सेंसिटिव टू द डिजायर्स एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल, सेंसिटिव होना चाहिए उनको। Art and antiquities collectors. Archaeologists find out can lead to uncontrolled looting. If archaeologists descendant population have to be careful about how archaeological finds are reported. It is also an ethical responsibility for archaeologists to present the results of their work to the general public.
publishing archaeological results, increasing public awareness about the past and the remaining of historical preservation. Present भी करना होता है गाइस। तो दिस वाज रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी। हमने पढ़ा डिटेल में, हमने डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हुई हैं। ओके गाइस, तो आप देखते हैं कि डिके हो जाता है कार्बन का, डिके हो जाता है रेडियोएक्टिव कार्बन का, डिके हो जाता है पोटेशियम रेडियोएक्टिव पोटेशियम का। तो इसकी हाफ लाइफ हमें पता होती है, तो हाफ अमाउंट इतने टाइम में डिके होगा। तो हम इसको 50,000 साल पुराने रिमेन्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ही हम एजिंग कर सकते हैं। इसमें 5,000 से साल से लेके 3 बिलियन ईयर्स साल तक की हम एजिंग कर सकते हैं पोटेशियम आर्गन डेटिंग से। डिकेइंग होती है, रेडियोएक्टिव फॉर्म्स ऑफ जो होता है पोटेशियम का, उसकी डिके पे होता है। और जो डिके होता है इसमें कार्बन 14 का, उससे हम इसकी एज डिटरमाइन करते हैं। ओके गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अंबर एंड अंबर सीरीज शुरुआत किया, 5th एडिशन एंथ्रोपोलॉजी बाय कैरोल एम्बर मेलविन और एम्बर एंड पीटर एंड पेरी ग्रीन द्वारा ये बुक ली गई है। पियर्सन इसके पब्लिशर है गाइस। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव ए गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।